देश में सामाजिक न्याय और सम्मान अधिकारों की बात तो अक्सर होती है, लेकिन आज भी कुछ समुदाय ऐसे हैं जो विकास की मुख्य धारा से काफी पीछे छूट गए हैं। हम बात कर रहे हैं डी नोटिफाइड और घुमंतु जनजातियों यानी एनटी डीएनटी समुदाय की, जो आज भी अपने बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। इसी मुद्दे को लेकर देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने सरकार के सामने कई महत्वपूर्ण मांगे रखी है और कहा है कि अब इस समुदाय के अधिकारों पर ठोस और तत्काल निर्णय लेने की जरूरत है। भारत में सामाजिक न्याय की प्रक्रिया में भटके, विमुक्त यानी डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स एनटी डीएनटी समुदाय आज भी सबसे अधिक वंचित रहने वाला सामाजिक वर्ग माना जाता है। स्वतंत्रता के बाद कई दशक बीत जाने के बावजूद इस समुदाय को मूलभूत अधिकार, संरक्षण और विकास के अवसरों से बड़े पैमाने पर वंचित रहना पड़ रहा है। आज भी देश के कई हिस्सों में एनटी डीएनटी समुदाय के लोगों को सामाजिक भेदभाव, संदेह की दृष्टि और कई प्रकार के अन्याय का सामना करना पड़ता है। हालांकि वर्तमान कानूनों में इनके लिए स्पष्ट और प्रभावी संरक्षण का अभाव है, जिसे समुदाय के लोग एक गंभीर समस्या मान रहे हैं। इस समाज को न्याय दिलाने के उद्देश्य से दिल्ली पहुंचे महान काली भूपति कुमार, तेलंगाना स्टेट वीरभद्रिया कम्युनिटी स्टेट प्रेसिडेंट करनी शिवा कुमार, डीएनटी नेशनल कन्वीनर ने मीडिया से बात की। आई एम फ्रॉम तेलंगाना स्टेट महाकाली भूपति कुमार, वीरभद्रिया कम्युनिटी स्टेट प्रेसिडेंट, and Karnesh Shiva Kumar ji, he is also chief advisor of the Telangana state, and Ravi, he is the one of the community state president. Yeah, we came to Delhi. Why? Because DNT Federation, we have in Telangana, DNT peoples are there, 56 communities are there in Telangana. But in Telangana and Andhra Pradesh also is there. Andhra Pradesh also, our Veerabhadriya community is there. They are also suffering for the reservations. That's why we came to Delhi. About we given the all states of 18 states of communities leaders are came to Delhi. Why? Because we are giving the opportunity to our DNT people. We have founding the one committee. At that committee, we discussed total belongs from two days onwards. We discussed about the DNT students. DNT students, they are not getting the reservations. Why? Because in Telangana, Andhra Pradesh and Orissa, Karnataka, our communities are there, Veerabhadriya communities, students. They are suffering a lot of. Why? Because they are going to write the competitive exams for the NEET, JEE mains. They are not getting the seats. We are asking to central government and state governments. We are requesting to the state governments and central government, please provide for us the DNT certificate in state government. And also I am requesting to the central government, Narendra Modi ji, I am requesting, please consider for us central also DNT certificate. Our children will be good suffering so much. If you given for me a DNT certificate, our students will be success in their lives. And also we want quality education and quality food for our government sectors of the schools, those who are studying in government sector, good quality food, and also good employment, quality education, quality food, quality hospitalizations in the government hospitals. We are demanding to the Narendra Modi ji and Congress Party Prathipaksha Neta Rahul Gandhi ji, please discuss in Parliament section to about the DNT peoples. We are suffering lot of in Telangana and Andhra Pradesh. That's why I am through media, I am asking to the both governments. In Telangana state mein Congress government is there, and in central is the BJP government is there. Please provide for us economically and at the same time jobs also. We are not getting the jobs. We don't have any political power or political. We can't participate in any political. We are not getting any. That's why I am requesting to both governments, please give the DNT certificate at the state and at the central for the
Andhra Pradesh and Telangana. Thank you. विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों का कहना है कि राष्ट्रीय जनगणना में एनटी डीएनटी समुदाय की सटीक गणना और स्वतंत्र वर्गीकरण बेहद जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में उपलब्ध आंकड़े अधूरे और बिखरे हुए हैं, जिसके कारण नीतियां बनाते समय इस समुदाय की वास्तविक स्थिति सही तरीके से सामने नहीं आ पा रही है। इसके साथ ही भटके विमुक्त समाज का संवैधानिक पुनर्वास भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताया गया है। ऐतिहासिक अन्याय और लंबे समय तक विस्थापन के कारण इस समुदाय के लोगों को स्थायी निवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों से वंचित रहना पड़ रहा है। इसलिए समुदाय के प्रतिनिधियों ने मांग की है कि पुनर्वास की प्रक्रिया केवल योजनाओं तक सीमित न रहे, बल्कि इसे संवैधानिक अधिकार के रूप में लागू किया जाए। मैं वरंगल डिस्ट्रिक्ट का आदमी हूँ, वरंगल से आया हूँ। तेलंगाना स्टेट का है। मैं किसी लिए दिल्ली आया, ये डीएनटी एनटी एसएनटी के बारे में नेशनल वाइज मीटिंग बोले तो हम इधर आए थे। नेशनल वाइज मीटिंग में जो डिसाइड कर दिया, फेडरेशन बना दिए। फेडरेशन में हर एक स्टेट से दो आदमी को, डेलीगेटेड्स को ले लिए। और एक क्या बोले तो डीएनटी एसएनटी वो लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं, पहले गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। हर स्टेट में रिकॉग्नाइज नहीं, थोड़ी स्टेटों में डीएनटी सर्टिफिकेट दे रहे और थोड़े स्टेट में नहीं दे रहे। हम तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को डिमांड कर रहे हैं और डीएनटी का बोर्ड बना दो, एक डीएनटी का कमीशन का बोर्ड बनाते तो यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से हर एक राष्ट्र को वो काम आ जाएगा। डिफरेंट स्टेट में प्रॉब्लम नहीं है, जैसा सेंट्रल से जो डिसीजन है हर एक को इस्तेमाल करेगा। और ये संचारा जाति का हमारे पास वीरभद्रीय कुलम 36 कैस्ट का संचारा जाति तेलंगाना में भी है, आंध्र में भी है, हर जगह कर्नाटका में भी है, उड़ीसा में भी है, महाराष्ट्र में है। हर जगह हमारे लोग जीते रहे। अभी तक तो गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा नहीं उठाया ना। असल बच्चों लोगों को हम तो संचार जीवन बोले तो पेट के लिए स्टेट घूमते रहते। हमारे बच्चे लोगों को कहाँ पढ़ाई करना हमारे को समझ में नहीं आ रहा। और हमारे को एक आधार कार्ड और कुछ कार्ड लेंगे बोले तो भी हमारे को कोई रिकग्नाइजेशन नहीं। इसीलिए कई एक जगह हमारे को डबल बेडरूम दिए तो वही जगह हम सेटल हो जाएंगे। गवर्नमेंट ये सोचना है, जो भी गवर्नमेंट है, कांग्रेस होने दो, बीजेपी होने दो, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी हो, गरीबी हटाओ बोल के पहले वो लोगों का डिमांड वही है रहता हर जगह पे, वो इलेक्शन के टाइम पे। और गरीबी कौन है? हमसे हमारे जैसे गरीबी कोई नहीं है दुनिया में। कहाँ भी देखो हमारे डेरा देखे रहते, इलेक्शन के चुनाव के टाइम पे हमारे डेरे के ऊपर जाते रहते, आते रहते। खाली हम तो एक इलेक्शन का वोट डालने का मशीन बन गया, मगर गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा उठाने का नहीं है। अभी तो भी हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए एक हर एक स्टेट में एक PG to KG वर्ग को एक रेजिडेंशियल स्कूल बनाना चाहिए। हमारे लिए रेशन कार्ड इशू करना चाहिए, आधार कार्ड इशू करना चाहिए, डबल बेडरूम्स इशू करना चाहिए। और जो गवर्नमेंट से जो फ़ायदा आ रहे हमारे लिए वो हमारे को होना चाहिए। इसीलिए हम तो दिल्ली में लड़ाई करने का, जंग करने के लिए हम तैयार है। हमारा हक, हम 10% रिजर्वेशन हमारा चाहिए, हमारा हुक्म है, आप लोग देने का फ़र्ज़ है। हमारे लिए 10% रिजर्वेशन भी होना चाहिए। और क्या बात बोले तो SC ST लोग में हमारे से कम आदमी लोग रहे तो भी वो लोगों को रिजर्वेशन, पार्लियामेंट में, MP में, MLA इलेक्शन में, छठा सब वो लोग में उसमें आदत। हमारे कोई रिजर्वेशन भी नहीं है, हमारे को कुछ फ़ायदा भी नहीं है। इसीलिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी हम मांग रहे हैं। पॉलिटिकल में भी हमारे को रिजर्वेशन चाहिए। हमारे लिए पार्लियामेंट में बात उठाना बोले तो कोई आदमी नहीं है। MP MLA असेंबली में कोई बात बोलने वाले तो हमारे को, इसीलिए पॉलिटिकल में हमारे को रिजर्वेशन भी चाहिए। हम तो गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, हमारा जो हक हमारे को दे दो। हम दुनिया में जी रहे हैं, वो तो अभी तो फिल वक्त 76 स्वतंत्र हक है, हमारे को अभी तक रिकग्निशन नहीं आया। अभी कितने साल रहेगा ऐसा? इसीलिए हमारे हक के लिए हम लड़ने को तैयार है। अब दिल्ली में भी आ गए, दिल्ली में भी जंतर मंतर में भी हमारा मीटिंग चलेगा। हमारा हक के लिए हम लड़ाई करें। नवंबर 1 को हम सोच रहे हैं, हमारा फेडरेशन वाले बोले थे, हमारे लीडर बोले थे, नवंबर 1 को जंतर मंतर में मीटिंग लगा देंगे। हमारे लिए, हमारा हक के लिए हम गवर्नमेंट से लड़के ले लेंगे। भीख मांगने का कोई ज़रूरत नहीं बोल के हम सोच रहे हैं, वही हो जाता। भगवान के दया से सबको गवर्नमेंट से सब फ़ायदा उठाना बोल के हम आजीजी करें।
समुदाय की ओर से केंद्र और राज्य सरकारों के सामने कई प्रमुख मांगे रखी गई है, जिसमें एंटी डीएनटी समुदाय को अत्याचार निवारण कानून के तहत प्रभावी कानूनी संरक्षण दिया जाए। राष्ट्रीय जनगणना में एंटी डीएनटी समुदाय का अलग और सटीक वर्गीकरण किया जाए। ऐतिहासिक अन्याय को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक पुनर्वास की स्पष्ट नीति बनाई जाए। भटके विमुक्त परिवारों को भूमि अधिकार और अस्थायी आवास उपलब्ध कराया जाए। एंटी डीएनटी समुदाय के विकास के लिए विशेष और पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाए। समुदाय के नेताओं का कहना है कि विभिन्न आयोगों जैसे रैन के आयोग और इदाते आयोग ने भी एंटी डीएनटी समुदाय के हित में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की है, लेकिन अब तक उनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। प्रतिनिधियों के अनुसार देश के कई राज्यों जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, झारखंड और तमिलनाडु सहित हैदराबाद से आए लोगों ने इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा की है। उनका कहना है कि देश में लगभग 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस समुदाय से जुड़े हैं और आज भी पहचान, शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जीवन के अधिकार से वंचित हैं। समुदाय के लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी उन्हें पूरी तरह से संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में अब सरकार से उम्मीद है कि जल्द ही ठोस कदम उठाकर इस समुदाय को न्याय दिलाया जाए। सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि समाज के सबसे वंचित वर्गों तक भी विकास और अधिकारों की रोशनी पहुंचे। अब देखना यह होगा कि सरकार एंटी डीएनटी समुदाय की इन मांगों पर कितनी जल्दी और कितनी गंभीरता से निर्णय लेती है। हम तेलंगाना से आए, सिद्धुला कम्युनिटी स्टेट प्रेसिडेंट है। हम इधर डीएनटी के लिए आए हैं। सिद्धुला रविंद्र हमारा नाम। डीएनटी प्रोग्राम चल रहा 14-15 चला था। पूरे उसमें डीएनटी के सर्टिफिकेटों के वास्ते बात करे हैं। वो अब डीएनटी के साथ पूरा लोग हर राष्ट्र से आए हैं इधर, वो सबके साथ पूरा हम बातचीत करे हैं। उसके वजह से अब डीएनटी सर्टिफिकेट देना बोल के गवर्नमेंट को ये कर रहे हैं। ओके।